نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ ملائیشیا مکمل، دارالحکومت کوالالمپور میں 32ویں آسیان ریجن میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ آسیان فورم کے دوران نائب وزیر اعظم نے ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم اور مختلف ممالک کے وزراء سے ملاقاتیں بھی کیں۔ اسحاق ڈار کوالالمپور سے وطن کے لیے روانہ۔ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کی سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ سینیٹ انتخابات میں مشترکہ حکمت عملی اور خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صوبے میں کرپشن اور امن و امان کی ابتر صورتحال پر گفتگو۔ تحریک انصاف اختلافات کا شکار، خیبر پختونخوا اسمبلی میں 30 ارکان نے خود کو آزاد قرار دیا ہے۔ نمبرز پورے ہوں گے تو تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے۔ گورنر کے پی کے کی میڈیا سے بات چیت۔ پاکستان اور کشمیر کو دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مظفر آباد میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی آزاد کشمیر سول سوسائٹی کے ساتھ خصوصی نشست۔ کشمیری عوام کا پاک آرمی سے محبت کا انوکھا اظہار، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کو کشمیری ثقافتی لباس پیش۔ ایس آئی ایف سی کے تعاون سے پاکستانی معیشت میں نمایاں ترقی۔ مؤثر حکمت عملی سے ترسیلات زر میں 28.79% کا نمایاں اضافہ۔ یورپی منڈیوں میں برآمدات میں 10 ماہ میں 7.55 ارب ڈالرز کا ریکارڈ اضافہ۔ پاکستان کا پہلا پانڈا بانڈ چین میں جاری کرنے کی تیاری۔ گزشتہ کاروباری ہفتہ ملکی معیشت کے لیے بہترین ثابت ہوا۔ سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس 1,34,931 پر پہنچ گیا۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 20 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ 38 ارب کی ریکارڈ ترسیلات زر موصول ہوئیں، جو کہ 2023-24 کے مقابلے میں 26% زیادہ ہے۔ سانحہ سواد سے متعلق تحقیقات مکمل۔ نظام میں موجود خامیوں کی نشاندہی۔ غفلت کے مرتکب سرکاری اہلکار نامزد، تادیبی کارروائی کی سفارش۔ سیلاب کی پیشگی اطلاع دینے والا نظام غیر فعال۔ متعلقہ محکموں کے درمیان رابطے کا فقدان۔ ریسکیو 1122 کے رد عمل میں تاخیر۔ تربیت یافتہ اہلکاروں اور درکار آلات کی عدم دستیابی سامنے آ گئی۔ پبلک سیفٹی یقینی بنانے کے لیے کوئی ایس او پیز موجود نہیں۔ تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف۔ صحت کارڈ کی آڈٹ رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی۔ جس نے جو غلط کیا وہ بھگتے گا۔ پہلی مرتبہ 50,000 گھروں کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بھی اپنا گھر اپنی چھت ملنی چاہیے۔ انسانی حقوق کے چیمپئن بلوچستان کے واقعات پر خاموش کیوں ہیں؟ خیبر پختونخوا کے فنڈز تحریک میں جھونکنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں مانسون بارشوں کا تیسرا سپیل 17 جولائی تک جاری رہے گا۔ لاہور، گوجرانوالہ اور سیالکوٹ سمیت دیگر شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ ڈی جی خان، بلوچستان، کوہستان، چترال، سوات کے مقامی برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں، مری، کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ۔ غزہ میں رات بھر اسرائیلی فوج کی بمباری، مزید 17 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ غزہ سٹی پر اسرائیل کے فضائی حملوں میں 10 سے زیادہ افراد شہید۔ دیر البلح میں خیمہ بستی پر اسرائیلی فورسز کی بمباری میں 3 فلسطینی شہید۔ امدادی مراکز پر اسرائیلی فورسز کے حملوں اور فائرنگ سے سینکڑوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ۔ امید ہمیں مایوسی کے اندھیرے میں روشنی کی کرن تلاش کرنے کی آس دلاتی ہے۔ ہمیں مشکلات کے باوجود امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فلسطین اور کشمیر کے عوام پر بھی جلد آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ پنجاب میں ہر بے گھر کو اپنی چھت کا سکھ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا امید کے عالمی دن پر پیغام۔
SCO کا انقلابی اقدام آزاد کشمیر میں خصوصی افراد کے لیے پہلا فری لانسنگ ہب قائم، نوجوانوں کو مفت ڈیجیٹل مہارت اور فری لانسنگ کی تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ ہب اعتماد بحال کرنے اور نوجوانوں کو خواب دیکھنے کا ذریعہ ثابت ہو رہا ہے۔ SCO کا یہ اقدام خصوصی نوجوانوں کو ڈیجیٹل معیشت میں باعزت مقام دلانے کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ چین میں انڈر 18 ایشیا ہاکی کپ فائنل کل پاکستان اور جاپان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ سیمی فائنل میں پاکستان کی ملیشیا کو شکست، مقررہ وقت تک مقابلہ 3-3 گول سے برابر رہا۔ فیصلہ پینالٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا، جس میں پاکستان نے 3 کے مقابلے میں 4 گول سے کامیابی سمیٹی۔ برطانیہ میں ٹینس گرینڈ سلیم ومبلڈن اوپن مین سنگلز کا فائنل ورلڈ نمبر 1 اٹلی کے جینک سنر اور نمبر 2 اسپین کے کارلوس الکراز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ سیمی فائنل میں جینک سنر نے سربیا کے نوواک جوکووچ کو اسٹریٹ سیٹس میں ہرایا۔ دفاعی چیمپئن الکراز نے امریکہ کے ٹیلر فریٹز کو مات دی۔ اور 21 مراحل پر مشتمل سائیکلنگ گرانڈ ایونٹ ٹور ڈی فرانس 7واں مرحلہ سلوینیا کے تادیج پوکاچر کے نام رہا۔ دفاعی چیمپئن نے مجموعی برتری کے ساتھ لیڈرز جرسی بھی حاصل کر لی۔ ڈنمارک کے جونس وینگیگارڈ دوسرے، جبکہ برطانیہ کے آسکر آنلے تیسرے نمبر پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں ہما ملک۔ کھیل اور کھلاڑیوں کی اہم خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسا قریشی، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار 2 روزہ دورہ ملیشیا مکمل کرنے کے بعد اسلام آباد روانہ ہو گئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورہ ملائیشیا کے دوران نائب وزیر اعظم نے ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم سمیت 12 وزرائے خارجہ سے 2 طرفہ ملاقاتیں کیں۔ انہوں نے ایشیائی علاقائی فورم 2025 کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی اور کوالالمپور میں پاکستانی کمیونٹی سے بھی خطاب کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان آسیان کے ایشیا پیسیفک خطے میں تعاون اور استحکام کے کردار کو اہمیت دیتا ہے۔ کوالالمپور میں آسیان ریجنل فورم سے خطاب میں نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کوالالمپور اعلامیہ 2045 کے ویژن کو سراہتا ہے اور امن کے لیے آسیان کے پائیدار تصوراتی اہداف کی حمایت کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ جنوبی ایشیا کو تنازعات کی وجہ سے سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے مسئلے کا حل نہ ہونا علاقائی عدم استحکام کی بڑی وجہ ہے۔ نائب وزیر اعظم نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعے کا بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام لگایا۔ پاکستان کی جانب سے آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کی گئی، جس کے باوجود بھارت نے پاکستان پر جارحیت کی اور معصوم شہریوں کو شہید کیا، انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچایا۔ پاکستان ایئر فورس نے بھارتی فضائیہ اور فوجی اتاشیوں کو نشانہ بنایا، اثاثوں کو نشانہ بنایا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کا رد عمل اپنی خود مختاری کے تحفظ اور بھارتی جارحیت کا مناسب جواب تھا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان سیز فائر کے نفاذ کے لیے پرعزم ہے۔ دہشت گردی کی بات کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں 80,000 سے زائد قیمتی جانوں کا نقصان اٹھایا ہے۔ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان جامع اور ہمہ جہت پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ تعلقات کی مضبوطی کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے ہیں۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے۔
नायब वज़ीर आज़म ने ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़फायर का खैर मकदम करते हुए ईरान की खुद मुख्तारी और हक़ दिफा की हिमायत की। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन को इसराइली जहरियत इंतहाई परेशान कुन है। फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली जहरियत को फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक यूक्रेन तनाज़े के हल पर भी जोर दिया। और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मुजफ्फराबाद का दौरा किया। इस मौके पर आज़ाद जम्मू और कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया गया। शुरका का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक थी, है और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। उन्होंने DGISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया। जज्बा है, हिम्मत है, खून अपना हाजिर है, पीछे हटेंगे ना, हम दे देंगे जान। जज्बा है, हिम्मत है, खून अपना हाजिर है, पीछे हटेंगे ना, हम दे देंगे जान। हम जन्म जन्म रुसवा जो हुए, हम रोज रोज जो खून हुए, लूटे भी गए, मसले भी गए, दरबार हकम गूंजे भी गए। अब गूंजेंगे अब लाख में हम, हर मस्कन और गली गली उठेगी अब ये वादी, लेके रहेंगे आजादी। उठेगी अब ये वादी, लेके रहेंगे आजादी। सुन लो ऐ दुनिया वालों, इंसाफ अदल के रखवालों, मौसम बीते जीवन बीते, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सुन लो दुनिया वालों, इंसाफ अदल के रखवालों, मौसम बीते जीवन बीते, तुमका चुनाव न लब सीते, हम भी उस जान को देखेंगे, गुलशन सारे फिर महकेंगे। कश्मीर है वो पाकिस्तान की शहरक है। कश्मीर के लिए हम पहले भी बहुत जंगें लड़ चुके हैं और मज़ीद भी लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे। जो रिसेंटली बुनियानुल मरसूस मार्का हक लड़ा गया तो उसको भी पाक फ़ौज को भी कश्मीरी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। कश्मीरी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और पाक फ़ौज कश्मीर के साथ। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, इनका कितना अहम जिम्मेदारी है इस सारी जो ये जंग हुई है, इसमें जो हमारी जंग मैदान में हुई है, हवा में हुई है, उससे पहले जो जंग हुई है वो सोशल मीडिया पे हुई है, जो हमने जीती है उनसे। फौज अवाम से और अवाम फौज से। पाकिस्तान जिंदाबाद। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरक है, पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है और ऐसे ही हमारे अंदर भी ये जज्बा है, हम भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम पाक अफवाज हमसे है और हम पाक अफवाज के साथ हैं। बुनियानुल मरसूस में हम लोगों ने कैसे जो है दुश्मन को शिकस्त दी, ऐसे ही अगर आने वाले वक्तों में वो हमारे साथ कुछ ऐसा करेगा तो हम हमेशा उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी हमारे साथ खड़ी है। पाक अफवाज जिंदाबाद। कश्मीरी हमेशा हर सिचुएशन के लिए तैयार होते हैं और वो पाक फौज के साथ शाना बशाना उनके खड़े रहेंगे। पहले भी खड़े थे, आगे भी खड़े रहेंगे। हमें पाक फौज पे फख्र। बतौर कश्मीरी हम अपनी पाक फौज पर फख्र करते हैं और इंशाअल्लाह ये जो कश्मीर है ये पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। और ये जो हम कश्मीरी हम पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और आप उसको अपना वकील और अपना महफूज समझते हैं। जो कश्मीर है उस पार का वो भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। पाक फौज जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उठेगी अब ये वादी, लेके रहेंगे आजादी। उठेगी अब ये वादी, लेके रहेंगे। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ता मुल्क की मईशत के लिए बेहतरीन साबित हुआ। इस दौरान स्टॉक मार्केट में 2350 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ और मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,34,931 पर पहुंची।
इसी हफ्ते स्टेट बैंक ने मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी किए। 3 साल के बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 20 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। स्टेट बैंक ने इसी हफ्ते गुज़श्ता माली साल में हासिल होने वाले तरसीलात ज़र के आदाद शुमार भी जारी किए। जामे इक़्तिसादी पॉलिसी की बदौलत हुकूमत ने तारीख में पहली मरतबा तरसीलात ज़र में 38 अरब डॉलर्स का हदफ कामयाबी से हासिल कर लिया, जो कि साल 2023-24 के मुकाबले में 26% ज़्यादा है। साल 2023-24 में पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर्स की तरसीलात हासिल हुई थीं। इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ तिजारत और ताल्लुकात के फ़रोग के लिए होने वाली पेशरफ्त ने भी सरमायाकारों के एतमाद में भरपूर इजाफा किया है। पाकिस्तान और तुर्की अगले चंद साल में तिजारत को 5 अरब डॉलर्स तक ले जाने का फैसला कर चुके हैं, जबकि आज़रबाईजान भी पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान और रूस के बाहमी ताल्लुकात में मजबूती आ रही है। रूस की जानिब से पाकिस्तान स्टील मिल्स को दोबारा बहाल करके जदीद खतूत पर उस्तवार करने में दिलचस्पी का इजहार किया गया है। SIFC की कामयाबी के दूसरे साल में पाकिस्तान की मईशत में नुमायां तरक्की, सरमायाकारी और इस्लाहात के मैदान में कामयाबियों पर खुसूसी रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। सिर्फ 11 महीनों में तरसीलात ज़र 34.99 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गईं, जबकि सिर्फ 3 मई 2025 को 3.68 बिलियन डॉलर्स की तरसीलात मौसूल हुई, जो गुज़श्ता साल से 13.67% ज्यादा हैं। इनमें 70% हिस्सा सऊदी अरब, UAE, बरतानिया और अमेरिका से आया। वजीर खजाना के मुताबिक ये रकूम साल के आखिर तक 38 बिलियन डॉलर्स को छू सकती हैं। यूरोप को पाकिस्तानी बरामदात में 8.6% का इजाफा हुआ और बरामदात 7.55 मिलियन डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गईं। टेक्सटाइल और मलबूसात की यूरोपीय मार्केट में मांग मुल्की सनत व आमदनी के फरोग की अलामत बन चुकी है। आलमी इदारे भी पाकिस्तान पर एतमाद कर रहे हैं। IMF का कहना है कि पाकिस्तान दुरुस्त समत में गामजन है। SIFC ने सालाना 2 बिलियन डॉलर सरमायाकारी का अज़्म किया, जबकि फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग +CCC से -B और मूडी ने आउटलुक को मस्बत करार दिया। पाकिस्तान चीन में अपना पहला पांडा बॉन्ड जारी करने जा रहा है, जिससे हासिल शुदा फंड्स जदीद ज़रई, माहौलियाती और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंसूबों पर खर्च होंगे। गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी में नुमायां इजाफा हुआ है। रबड़ मसनूआत में 163%, सोशल सर्विसेज में 416%, जबकि तामीरात और इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबों में भी पायदार तरक्की देखी गई। पायदार मईशत की जानिब एक और कदम, पाकिस्तान का पहला सब्ज सकूक। 30 अरब रुपए मालियत के इस बॉन्ड की तलब 162 अरब रुपए रही। ये फंड्स 3 नए डैम समेत तवानाई मंसूबों के लिए मुख्तस किए गए हैं। गैर मुल्की कंपनियों के मुनाफा की तरसील में 115% इजाफा हुआ। पहले 10 महीनों में 1.84 बिलियन डॉलर की तरसील हुई। ये एतमाद SIFC की इस्लाहात और IMF प्रोग्राम की कामयाबी का मजहर है। और फिर IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.4 बिलियन डॉलर की मंजूरी दी। इस कामयाबी को भारतीय साजिशों की नाकामी और कौमी तरक्की की फतह करार दिया है। ये है 2025 का पाकिस्तान, जहां इस्लाहात, सरमायाकारी और आलमी एतमाद ने पाकिस्तान की तरक्की की राह हमवार कर दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन ज़ैद अल नाहयान से मुलाकात की। मुलाकात में वीज़ा मसाइल, सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद स्मगलिंग और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम समेत इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुलाकात में सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, खुसूसन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस्तेफादे की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमन व अमान और जराइम की रोकथाम के लिए अबू धाबी पुलिसिंग के जदीद निज़ाम और ऑपरेशंस रूम का दौरा भी किया।
वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने बीजिंग में सकाफती वरासत और जिद्दत के मौजू पर फोरम से खिताब में कहा है कि हम डिजिटलाइजेशन से कौमी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे आका मसूद खालिद। फोरम से खिताब करते हुए विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि कदीम शाहराह रेशम जो अब सी पैक है सिर्फ तिजारती गुजरगाह नहीं, ये दोस्ती, फनून, सकाफत और खानों के तबादले का रास्ता है। उन्होंने कहा कि हम तहजीबों के संगम पर रहने वाले लोग हैं। We identify ourselves as the people of the Indus Valley civilization, and it originates in China. We are home to the ancient Gandhara civilization, which has ancient Buddhist sites. We are home to the great legacy of Mohenjo-daro and Taxila. They live on through the words of our Sufi poets. They live on through the hands of our artisans. They live on through the thoughts of our youth. We look forward to a brighter future, to a world where water is not weaponized, but water is used as a means of peaceful coexistence. विफाकी वजीर ने कहा कि अपने कौमी विरसे को डिजिटलाइज करने का अमल शुरू किया है। ये न सिर्फ इस कौमी खजाने के तहफ़्फ़ुज़ का जरिया है, बल्कि नए अंदाज में इसे पेश करने का मौका भी फराहम करता है। उनका कहना था कि हम चीन के साथ कौमी टेलीविजन के इश्तराक के मुआहदे कर चुके हैं, मुश्तरका डॉक्यूमेंट्री और फिल्म साजी की तरफ बढ़ रहे हैं। Focusing more on digital media influencers and exchange of digital media influencers from both countries, so that the tourism, culture, history, heritage and cuisines can be shown and shared through digital media. So the future now lies in building stronger bonds through digital media. Our partnership with the China Media Group has enabled us to enlighten and empower our youth furthermore. So we have certain programs going on. चीन के सदर शी जिनपिंग की क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव का आगाज एक खुश आइंद पेशरफ्त है। विफाकी वजीर इत्तलात का कहना था कि पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर हैं। ये इस्तिलाह हमारी तारीख और सकाफत में गहरी जड़ें रखती है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और पाक बहरिया के ऑफिसर, सीपीओ, सेलर्स और सिविलियंस को अस्करी एहसासात तफवीज़ करने की तकरीब हुई। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक तकरीब में 13 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 11 अफसरान को तमग़ा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। 183 मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर्स और सेलर्स को तमग़ा खिदमत मिलिट्री क्लास 2-3L तफवीज़ किए गए। 60 ऑफिसर्स, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर्स, सेलर्स और सिविलियंस को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ की जानिब से 27 असनाद से भी नवाजा गया। तकरीब में पाक बहरिया के सीनियर, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डायरेक्टरेट ऑफ मलेरिया कंट्रोल पाकिस्तान ने मुल्क के पहले G6PD पायलट मंसूबे के नताइज जारी कर दिए। कौमी इदारा तदारुक बराए मलेरिया के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार ने मंसूबे पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इस मंसूबे को आलमी इदारा तरक्की बराए अद्वियात के ताउन से पाकिस्तान के 9 मुतासरा अजला में कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर ममलकत सेहत का कहना है कि मंसूबा G6PD टेस्टिंग के अमली नफाज पर मरकूज था। हम इस पायलट मंसूबे के नताइज को अपनी कौमी हिकमत अमली से हम आहंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंसूबे का मकसद पाकिस्तान में मलेरिया के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली नई दवा का इस्तेमाल था। नई दवा पुरानी के मुकाबले में ज़्यादा मौसर है। मंसूबे को कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों ने भी बड़ी कामयाबी करार दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि बलूचिस्तान में शहीद होने वाले पंजाब के शहरियों पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अफसोस और दुख का इजहार किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहद हैं। जहां भी किसी मजलूम के साथ ज्यादती हुई, हमने आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि इंसानी हकूक़ के चैंपियन बलूचिस्तान के वाक़यात पर खामोश क्यों हैं। सेहत के शोबे पर बात करते हुए उस्मा बुखारी ने कहा कि शोबा सेहत की तरक्की के लिए मरियम नवाज दिन रात काम कर रही हैं और लोगों की दहलीज पर अद्वियात फराहम की जा रही हैं। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में इलाज की मुफ्त सहूलियात फराहम कर रहे हैं, जबकि निजी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड की सहूलत भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि रियासत को मजबूत फैसले करना पड़ेंगे। 50,000 घर तामीर हो जा रहे हैं और ये मनसूबा पहली बार होने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी अपना घर, अपनी छत मिलनी चाहिए।
वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ ऑन सकलैन चौधरी ने सराजेवो में बोस्निया के शहदा के रेफरेंस की तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तकरीब में वज़ीर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से ताज़ियती ख़त भी पढ़कर सुनाया। ऑन चौधरी ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से 1995 के 8000 मुसलमान शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर मुमलिकत ओवरसीज़ ऑन चौधरी ने तकरीब के दौरान शहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। भारत और इसराइल का अस्करी इत्तेहाद मुस्लिम दुनिया के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी के फ़रोग़ में सरगर्म है। दोनों ममालिक की मुश्तरका हिकमत अमली खित्ते के अमन के लिए शदीद खतरा बन चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत 2012 से 2022 तक 37 अरब डॉलर का असलहा खरीद चुका है, जिनमें से बड़ी मिक़दार इसराइल से हासिल की गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया और टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक दोनों ममालिक मेक इन इंडिया मंसूबे के तहत मुश्तरका असलहा साजी कर रहे हैं। यह हथियार मकबूजा कश्मीर और गजा में इस्तेमाल हो रहे हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक भारत और इसराइल मुस्लिम ममालिक से मुश्तरका खतरा महसूस करते हैं। दुकन हेराल्ड और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल 1965 और 1971 की जंगों में भी भारत को असलहा फराहम करता रहा है। दोनों ममालिक जदीद मिसाइल इंटेलिजेंस और निगरानी के निज़ाम की शराकत से खित्ते को असलहे का मरकज़ बना चुके हैं। कश्मीर से गजा तक यकसा हरबों का इस्तेमाल और सहूनियत और हिंदुत्व का इस्लाम मुखालिफ बयानिया मुस्लिम दुनिया के लिए तशवीशनाक बनता जा रहा है। आलमी बरादरी की खामोशी इस इश्तियाल अंगेजी को मजीद बढ़ावा दे रही है। और ब्रिक्स बैंक के साबिक नायब सदर ने भारत को इसराइल का एजेंट करार दे दिया है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक ब्राज़ील के मारूफ माहिर इक्तिसादियात और ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के साबिक नायब सदर प्रोफेसर पाओ नगोरो का एक तबसरा सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रोफेसर पाओलो ने न्यूज़ चैनल RT को इंटरव्यू में कहा था कि भारत ब्रिक्स के अंदर एक ट्रोजन हॉर्स है। मुबस्सिरीन का कहना है कि भारत इलाके का चौधरी बनने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन ये ख्वाब ही रहेगा। गजा में रात से इसराइली फ़ौज की बमबारी का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल के ताज़ा हमलों में मज़ीद 17 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक गजा सिटी पर इसराइली फोर्सेस के फ़ज़ाई हमलों में 10 से ज़ायद अफराद शहीद और कई ज़ख्मी हो गए हैं। दीरुल बलाह में खैमा बस्ती पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी में 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों के हमलों और तशद्दुद से अमरीकी बाशिंदे समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी महकमा खारजा ने रामुल्ला में इजरायली आबादकारों के हाथों अमरीकी बाशिंदे की हलाकत की तस्दीक कर दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजरायली आबादकारों ने रामुल्ला में मुतादिद फ़लस्तीनियों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसमें 2 हलाक और कई ज़ख्मी हो गए। सहूनी फोर्सेस की मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। घर घर तलाशी की कार्रवाई के दौरान मुतादिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसराइल और हमास के दरमियान दोहा में बिलवास्ता मुज़ाकरात ताहाल जारी हैं। मुज़ाकरात में आज कैदियों से मुतालिक उमूर और गजा में इमदाद के दाखिले के तरीक़ाकार पर बात होगी। अमरीकी एलची स्टीमटकोफ भी अभी तक मुज़ाकरात में शरीक नहीं हुए, ताहम ज़राए के मुताबिक कुछ दिन तक वो कतर पहुँच जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और रूस के हम मनसब सरगेई लावरोव के दरमियान मलेशिया में जनूब मशरकी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान रूस यूक्रेन जंगबंदी, बैनुल-अक़वामी उमूर, ईरान और शाम की मौजूदा सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानिया और फ्रांस का गैर कानूनी तारकीन वतन को फौरी वापस भेजने का मुआहदा। बरतानिया और फ्रांस ने गैर कानूनी तौर पर यूरोप में दाखिल होने वाले तारकीन वतन से निपटने के लिए सिक्योरिटी मुआहदा कर लिया है। इस मुआहदे के तहत छोटी कश्तियों के जरिए गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले अफराद को फौरी गिरफ्तार करके वापस भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया सिर्फ उन पनागुज़ीनों को कबूल करेगा जो हकीकतन तहफ़्फ़ुज़ के मुस्तहिक होंगे। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी दाखिले को रोकने के लिए दोनों ममालिक का बॉर्डर सिक्योरिटी अमला एक दूसरे से मुकम्मल ताउन करेगा।
ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین، ثانیہ سوات کی تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق ثانیہ کے وقت پولیس، ریسکیو اور دیگر اداروں کے درمیان رابطے کا فقدان رہا، جبکہ ارلی وارننگ سسٹم بھی غیر فعال ہونے کے باعث بر وقت اطلاع نہ مل سکی۔ رپورٹ میں بلڈنگ ریگولیشن، تجاوزات کی نشاندہی، سیاحوں کو خبردار کرنے اور دریاؤں کے کنارے سرگرمیوں کی نگرانی میں بھی سنگین کوتاہیاں سامنے آئیں۔ سیاحوں کو خطرے سے آگاہ کرنے میں ہوٹلز مالکان کی جانب سے بھی غفلت کا مظاہرہ کیا گیا۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے رسپانس میں تاخیر، تربیت یافتہ اہلکاروں اور درکار آلات کی عدم دستیابی بھی سامنے آئی۔ مانسون سیزن میں پبلک سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کوئی منظم SOPs موجود نہیں تھیں۔ رپورٹ میں تحقیقاتی ٹیم نے ضلعی انتظامیہ، محکمہ آبپاشی، بلدیات اور ریسکیو 1122 کے ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف تادیبی کارروائی کی سفارش کی ہے، جس کی وزیر اعلیٰ نے فوری طور پر منظوری دے دی ہے۔ ناظرین، لاہور میں آج بھی موسم خشک رہنے کے امکانات ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات نے لاہور سمیت پنجاب کے اکثر علاقوں میں 17 جولائی تک مانسون کی مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ موسم کا مزید احوال جانتے ہیں نوید حیات سے۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور کے موسم کی بات کی جائے تو گزشتہ رات شہر لاہور میں ہلکی پھلکی بارش جو ہے اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے، اور آج پھر جو ہے وہ صبح سویرے سے ہی سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں، کے علاوہ جو 13 سے 17 جولائی تک جو ہے وہ مزید بارشوں کا جو ہے وہ امکانات دکھائی دے رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ جو سپیل ہے، اس میں اربن فلڈنگ کا جو ہے وہ خدشہ ظاہر کیا گیا، اور PDMA کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد اور دیگر جو شہر ہیں وہاں پر اربن فلڈنگ کا خدشہ جو ہے ظاہر کیا گیا۔ اس حوالے سے PDMA نے اپنے جو ہے تمام انتظامات کو مکمل کر رکھا ہے۔ شہر میں آج موسم کی بات کی جائے تو آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ کم سے کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے گا، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 84% ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں آج مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور گرم رہنے کی توقع ہے، تاہم محکمہ موسمیات کے مطابق بعض اضلاع میں تیز ہوائیں چلنے اور موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ تیز بارش کے باعث مقامی ندی نالوں میں طغیانی جبکہ لینڈ سلائیڈنگ کا اندیشہ ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے انور اللہ خان سے۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں آج مطلع جزوی ابرآلود اور گرم رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چترال، دیر، سوات، کوہستان، بٹاگرام کے اضلاع میں اکثر مقامات پر بارش کا امکان آج ظاہر کیا گیا ہے۔ بعض مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ ہوا میں اس وقت نمی کا تناسب جو ہے وہ 60% ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیز بارش کے باعث چترال، دیر، کوہستان، بٹاگرام کے مقامی ندی نالیوں میں طغیانی کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ تیز بارش کے باعث شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ تیز آندھی اور تیز ہواؤں کے باعث کمزور انفراسٹرکچر کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ اس طرح آپ کو بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ بارش جو ہے وہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پڑے چنار میں 22 ملی لیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ NDMA اور PDMA کی جانب سے ضلعی انتظامیہ، ریسکیو 1122 اور متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رکھا گیا ہے تاکہ کسی بھی ناگہانی آفت سے بروقت نمٹا جا سکے۔ جی بہت شکریہ، اور اب رخ کرتے ہیں شہر قائد کا، جہاں موسم گرم اور مرطوب ہے، جبکہ سمندری ہواؤں کی جزوی معطلی سے حبس کی کیفیت برقرار ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ PTV نیوز کراچی سے سہیل جمالی۔ جی سہیل، آگاہ کیجیے گا۔ کراچی میں موسم آج بھی گرم اور مرطوب ہے۔ اس وقت درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 60% سے زائد ہونے کے باعث گرمی کی شدت 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا رہی ہے۔ اس وقت جنوب مغرب سے 11 کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، تاہم سمندری ہواؤں کی جزوی بندش سے شہر میں حبس کی کیفیت برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ کیفیت کل تک برقرار رہے گی، اس کے بعد سمندری ہواؤں کی بحالی سے شہر میں موسم بہتر ہو جائے گا۔ اس وقت بھی مطلع جزوی طور پر ابرآلود ہے، تاہم شہر میں حبس کی کیفیت برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 16 جولائی سے مانسون کا تیسرا اسپیل شہر میں داخل ہوگا، جس کے بعد ماڈریٹ اور تیز بارشوں کی توقع ہے۔ جی
जी सोहेल जमाली तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। ताहम शाम और रात के औकात में शिमाल मशरकी और जनूबी पंजाब, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जनूबी और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी और जनूबी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो नौकुंडी, दालबंदीन 46, रोहड़ी, खैरपुर, दादू, मोहनजोदड़ो, सक्खर, तुरबत और पंजगूर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया कदीर। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि वज़ीर आबपाशी पंजाब काजिम अली पीरज़ादा ने लिया का दौरा किया और बकरी अहमद खान के मकाम पर दरियाए सिंध का मुआयना किया। वज़ीर आबपाशी ने महकमा अनहार की जानिब से कटाव के सद्देबाब के लिए इक़दामात का भी मुआयना किया। उन्होंने दरिया सिंध के किनारे हिफाजती इक़दामात को बढ़ाने के साथ साथ आवाम के जानो माल और ज़रई ज़मीनों को महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की हिदायत की। काजिम अली पीरज़ादा ने अफसरान और एहलकारों को हिफाजती बंद की निगरानी जारी रखने और दरियाई कटाव के पेश नज़र हर मुमकिन वसाइल फराहम करने की हिदायत की। सूबाई वज़ीर का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमत पंजाब मुश्किल घड़ी में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने उम्मीद के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि हिम्मत और हौसले से ही उम्मीद की रोशनी यकीन का तमतमाता सूरज बन सकती है। उन्होंने कहा कि उम्मीद एक ऐसा जज्बा है जो हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देता है। उम्मीद हमें मायूसी के अंधेरे में भी रोशनी की किरण तलाश करने की आस दिलाती है। वज़ीर आला ने कहा कि यह दिन हमें यकीन दिलाता है कि मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम पर जल्द आज़ादी का सूरज तुलू होगा। वज़ीर आला ने कहा कि हम कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। दुनियापुर की एक बाहिम्मत माँ ने अपने 2 बेटे वतन पर कुर्बान करके वो तारीख रकम की है जो हमेशा याद रखी जाएगी। ये माँ न सिर्फ अपने शहदा पर नाजा हैं बल्कि उसका हौसला और इसार पूरी कौम के लिए मशलिरा है। वतन की खातिर जाने निछावर करने वाले इन सपूतों की शहादत और उनके अहले खाना का जज्बा इस अमर का सबूत है कि पाकिस्तानी कौम दुश्मन के हर वार के आगे सीसा पिलाई दीवार बनी हुई है। मैं अपने पाकिस्तान पे फख्र करती हूँ। मैं शहीदों की औलाद हूँ। 1947 की जंग में मेरा पूरे का पूरा खानदान शहीद है। मेरा लहू पाकिस्तान की जड़ों में है। मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर माँ बाप की औलाद इतनी लायक हो कि माँ बाप का सदका जारिया बने। पाक वतन शादाब चमन है प्यारे पाकिस्तान, ऊंची तेरी शान, सूरज से भी चमकीली है तेरे पहाड़ों की पेशानी, चांद की किरणों से उजला है तेरे दरियाओं का पानी, जन्नत को शर्माए तेरे हरे भरे मैदान, प्यारे पाकिस्तान ऊंची तेरी शान, मीर इब्ने कासिम ने तेरा परचम लहराया, मीर इब्ने कासिम ने तेरा परचम लहराया, होरी महमूद ने बढ़ के तेरी हदों को चमकाया। पाकिस्तान कायदे आज़म की कोशिश से चढ़ा है तू परवान, प्यारे पाकिस्तान ऊंची तेरी शान, जाबर उस्मान की जान तेरे पे कुर्बान। और मेरे पंजाब दिला रखने वाले मादनियात और कानकनी के सूबाई वजीर सरदार शेर अली गोरस्तानी कहते हैं कि पंजाब में मादनियात के शोबे में ठोस इक़दाम जारी हैं। कुदरती वसाइल के बेहतर इस्तेमाल से मुल्की मईशत को बेहतर किया जा सकता है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर ने कहा कि शोबा मादनियात में सरमायाकारी, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और शफाफियत को फ़रोग़ दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पंजाब में मादनियात का शोबा दूसरे सूबों से बेहतर और मुतहर्रिक अंदाज में जिम्मेदारियां निभा रहा है। उन्होंने कहा कि मादनियात के शोबे में 30 अरब रुपए का रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल हुआ है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि पंजाब के हर ज़िले में टेक्निकल कॉलेज बनाए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को हुनरमंद बनाया जा सके। तकरीब के इख्तिताम पर कारकुनों में मरियम नवाज राशन कार्ड भी तकसीम किए गए। इंफॉर्मेशन सर्विस एकेडमी इस्लामाबाद में इंफॉर्मेशन ग्रुप के ग्रेड 19 में तरक्की पाने वाले अफसरों की तरबियत मुकम्मल होने के बाद उन्हें पास आउट कर दिया गया। इख्तितामी तकरीब में 43वां मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स मुकम्मल करने और ग्रेड 19 में तरक्की पाने वाले इंफॉर्मेशन अफसरान को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन सर्विसेज एकेडमी इमराना वजीर ने सर्टिफिकेट्स और शील्ड्स दी। पास आउट होने वाले अफसरान ने नीपा में 10 हफ्ते और इंफॉर्मेशन सर्विस एकेडमी में 4 हफ्ते की खुसूसी तरबियत हासिल की। ग्रेड 19 में तरक्की पाने वाले अफसरों में मोहम्मद अफजल कोलाची, इमदाद अली, शाजिम अख्तर, सबा यासिर, अतीकुर रहमान, हुसैन अहमद वजीर और हम्मादुर रहमान कैसर शामिल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा पहुँच गए हैं। बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वज़ीर दाखिला जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा ने पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी का शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बहरीनी हम मनसब से अहम मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात के हवाले से दो तरफा इश्तराक कार पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देने, इलाकाई और आलमी चैलेंजेस से निपटने और बहरीन पाकिस्तान मुश्तरका सिक्योरिटी कमेटी के काम को मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तेफाक किया गया। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान सिक्योरिटी समेत दीगर शोबों में ताउन और हम आहंगी को सराहा। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान सिक्योरिटी ताउन कोऑर्डिनेशन को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बहरीन की वजारत दाखिला और पाकिस्तानी वजारत दाखिला के दरमियान इंसदाद मनशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए ताउन बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने बहरीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा ख्वाजा से अली बाबा ग्रुप के सदर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि वज़ीर आज़म हर हफ्ते कैशलेस इकॉनमी से मुतालिक इजलास की सदारत करते हैं। डिजिटल पाकिस्तान का विजन वज़ीर आज़म की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कैशलेस मईशत के फ़रोग़ के वसी इम्कानात मौजूद हैं। जेम्स टोंग ने कहा कि डिजिटल एक्सपोर्ट कारोबारी मौक़े और तरबियत में ताउन का ख़्वाहां हैं और पाकिस्तानी नौजवान तालीम याफ्ता और डिजिटल महारतों से आरास्ता हैं। स्पेशल कम्युनिकेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने जनवरी 2025 में आज़ाद कश्मीर में खुसूसी अफराद के लिए पहला फ्रीलांसिंग हब कायम किया। जदीद हब में खुसूसी नौजवानों को मुफ्त डिजिटल महारतें और फ्रीलांसिंग की तरबियत फराहम की जा रही है। मुजफ्फराबाद की मरियम अब्दुल्ला ने SCO के बारे में इजहार ख्याल करते हुए कहा, मेरा नाम मरियम अब्दुल्ला है, मेरी उम्र 25 साल है। मैं मुजफ्फराबाद के एक साइड एरिया में रहती हूँ जो कि एक हाईली डिप्राइव्ड कम्युनिटी है। मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो BA है और मैं बाय बर्थ फिजिकल जो है डिसेबल पर्सन हूँ, जिसमें सबसे बड़ा मसला छोटी हाइट है। मेरे हाथों पाँव की उंगलियाँ टेढ़ी हैं जो कि मुझे रोज़मर्रा काम करने में मुश्किल हो रही है और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा निगलेक्ट है। मेरी तरह के बहुत से डिसेबल बच्चे और बच्चियाँ लाइफ में कुछ करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। रिसेंटली SCO ने हमें SCO फ्रीलांसिंग हब बना के दिया है, जिसमें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट और लेटेस्ट कंप्यूटर्स प्रोवाइड किए गए हैं। इस फ्रीलांसिंग हब में मैंने बेसिक कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट किया, जिसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आऊँगी, जिसकी तरफ दुनिया आ रही है। SCO ने हमें एक ब्रांड न्यू गाड़ी प्रोवाइड की है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पिक एंड ड्रॉप प्रोवाइड करती है। ये सिर्फ गाड़ी नहीं बल्कि हमारी मंजिल तक पहुंचने का जरिया भी है। हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं SCO का। थैंक यू सो मच। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि दहशतगर्दों और उनके नुमाइंदा आवाज़ों के खिलाफ कार्रवाई रियासत का आईनी हक है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों को भी बेगुनाह पंजाबियों के कत्ल और दहशतगर्दी की हर कार्रवाई की बरमला मजम्मत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिनाख्त की बुनियाद पर मासूम इंसानों का कत्ल इंसानी हकूक़ की जंग नहीं बल्कि फितना और हिंदुस्तान के मकरू अज़ाइम की अक्कासी करता है। कोयटा में ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान के वफ़द से बात करते हुए उनका कहना था कि बलूचिस्तान से मुतालिक तस्वुर और हकीकत में बड़ा फ़र्क है।
मिसिंग पर्सनस इशू सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं, दूसरे सूबों में भी ये मसला मौजूद है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की कार्रवाइयाँ हुकूक के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान को तोड़ने के लिए हैं। रियासत मुखालिफ अनासर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस हैं। और ननकाना साहिब में वज़ीर आला पंजाब गंदम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत किसानों में इमदादी रकम तकसीम की जा रही है और काश्तकारों को 5,000 रुपए फी एकड़ दिए जा रहे हैं। जिले भर में 13,000 से जायद ज़रई किसानों में इमदादी रकम तकसीम की जाएगी। तफसील ननकाना साहब से जावेद अहमद बाविया की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब गंदम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जिला ननकाना साहब के 13,000 से ज्यादा किसानों में इमदादी रकूम की तकसीम के लिए तहसील की सतह पर 3 अदायगी मराकज बनाए गए हैं। 10,000 से ज्यादा किसानों को ये रकम किसान कार्ड के जरिए उनके अकाउंट में मुंतकिल की गई है, जबकि 3,000 किसानों में 5,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक पे आर्डर्स के जरिए तकसीम किए जा रहे हैं। ब्रांच बैंकिंग जो है बीजेपी की वो भी साथ बैठी हुई है। जो लोग इधर ही उनको इनसे लेना चाहते हैं पेमेंट वो इधर ही उनसे ले सकते हैं। पुलिस भी डिप्लॉय है। किसान की सपोर्ट बड़े अच्छे तरीके से की जा रही है। बहुत ही फायदेमंद किसान होगा कि वो अच्छी फसल उगाएगा। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है, इसी तरह ये किसान कार्ड है, ये सब्सिडी है, सोलर ट्यूबवेल वगैरह है, बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो जिम्मेदारों के फायदे के लिए हैं। तमाम अदायगी मराकज पर किसानों की मुकम्मल रहनुमाई, बैठने और पीने के ठंडे पानी का भी इंतजाम किया गया है। किसानों ने आसान और बावकार तरीके से इमदादी रकूम की फराहमी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया है। सिक्योरिटी के इंतजाम बड़े बेहतरीन है, साथ पानी का बैठने के इंतजाम सारे जबरदस्त जो है ना वो हो रहे हैं। गंदम की फसल काश्त की थी जिसकी मुझे जो मरियम नवाज ने वादा किया था उसके मुताबिक सब्सिडी मिल गया है, वो मैं अगली फसल के लिए इस्तेमाल करूँगा। 5,000 के हिसाब से 25,000 रुपया मिला है। 7 किले कणक बीजी तो 35,000 रुपया मरियम नवाज ने दिते, उसका बहुत शुक्रिया। ज़िली इंतजामिया की तरफ से किसानों में इमदादी रकूम की तकसीम के अमल की मुसलसल निगरानी भी की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब के इस किसान दोस्त प्रोग्राम से गंदम के काश्तकारों की हौसला अफजाई होने के साथ साथ इनकी माली मुश्किलात भी कम होंगी। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज, ननकाना साहिब। पाकपतन के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पाकपतन में 11 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाले नए ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया गया। तफसील जानते हैं अब्बास अली आरफी की इस रिपोर्ट में। मेंबर सूबाई असम्बली पाकपतन चौधरी जावेद अहमद ने VTI के नए ब्लॉक के फेज 2 का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि टेक्निकल एजुकेशन वक्त की अहम तरीन जरूरत है। गुजरांवाला गुजरात और सियालकोट वो पाकिस्तान की खुशहाल तरीन ट्रायंगल है, तो वो ऐसे टेक्निकल अदारे थे जो उनके सियासी अकाबरीन ने, उनके समाजी अकाबरीन ने पाकिस्तान बनने के फौरन बाद अपने इलाकों में कायम किया। नए ब्लॉक की तामीर पर 11 करोड़ 60 लाख रुपए की खतीर रकम खर्च करके इसमें एक कैंटीन और 11 लैब्स बनाई गई हैं। नए ब्लॉक की तामीर से सैकड़ों नौजवान हुकूमत के हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम के तहत फन्नी तालीम हासिल करके बाइज्जत रोजगार हासिल कर सकेंगे और खुद को खुद कफील बना सकेंगे। टेक्निकल एजुकेशन के शोबे की तरक्की के लिए किए गए हुकूमती इकदाम से जहाँ गुर्बत का खात्मा होगा वहीं मुल्क की मईशत में भी बेहतरी आएगी। अब्बास अली आरफी, PTV न्यूज, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन।